یہ کہانی ہے ایک موچی کی جس کا نام عابد تھا۔ عابد کی دکان گاؤں میں تھی۔ وہ روزانہ صبح دکان کھولتا، دن بھر گاؤں والوں کے پھٹے پرانے جوتوں کی مرمت کرتا اور جب شام ہوتی تو دکان بند کر کے گھر چلا آتا۔ وہ بہت غریب تھا، اس لیے اس کی دکان نہایت ٹوٹی پھوٹی حالت میں تھی۔ بارشوں میں اس کی دکان کی چھت ٹپکنے لگتی اور سارا سامان بھیگ جاتا۔ اس نے سوچ رکھا تھا کہ جیسے ہی اس کے پاس کچھ پیسے جمع ہوں گے وہ سب سے پہلے اپنی دکان کی مرمت کروائے گا۔ ایک روز جب وہ صبح اٹھا تو اس کی بیوی بولی، لکڑیاں ختم ہو گئی ہیں تو جلدی سے مجھے لکڑی والے سے لکڑی لا دو تاکہ میں ناشتہ بناؤں۔ عابد موچی نے اپنا منہ دھویا اور لکڑیوں کی ٹال کی جانب روانہ ہو گیا۔ جب وہ لکڑیوں کی ٹال پہ پہنچا تو وہ بند تھی۔ عابد نے سوچا کہ اگر لکڑی نہیں ملی تو پھر میری بیوی ناشتہ کیسے پکائے گی؟ یہ سوچ کر اس نے جنگل جانے کی ٹھانی تاکہ وہاں سے کچھ لکڑیاں لے کر گھر چلا جائے۔ جنگل بالکل قریب تھا۔ وہ جنگل کی طرف چل پڑا۔ اس کے پاس کھلاڑی تو تھی نہیں کہ لکڑیاں کاٹتا، اس لیے جنگل میں پہنچ کر اس نے بہت ساری خشک جھاڑیاں جمع کر لیں۔ پھر ان کا گٹھا بنایا اور اس گٹھے کو اٹھا کر گھر کی طرف چل دیا۔ ابھی وہ تھوڑی ہی دور گیا تھا کہ سامنے سے اسے ایک ننھا منا بونا آتا دکھائی دیا۔ وہ اپنے پاؤں گھسیٹ گھسیٹ کر آہستہ آہستہ چل رہا تھا۔ موچی کو لگا کہ اس کے پاؤں میں تکلیف ہے۔ بونے کے پاؤں کی تکلیف کا خیال آیا تو اس نے اس کی مدد کرنے کی ٹھانی۔ اس نے جھاڑیوں کا گٹھا زمین پر رکھا اور بونے کے قریب آنے کا انتظار کرنے لگا۔ بونا جب اس کے قریب پہنچا تو موچی نے کہا، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تمہارے پاؤں میں تکلیف ہے، کیا میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں؟ بونے نے کہا، میرے پاؤں میں کوئی تکلیف نہیں ہے، دراصل میں نے جو جوتے پہن رکھے ہیں وہ میرے پاؤں سے بہت بڑے ہیں، میں تیز تیز چلنے کی کوشش کرتا ہوں تو یہ پاؤں سے اتر جاتے ہیں۔ موچی نے اس کی بات سن کر اس کے پیروں پر ایک نظر ڈالی۔ بونے کے پاؤں تو چھوٹے چھوٹے تھے مگر اس نے جوتے اتنے بڑے پہنے ہوئے تھے۔ اتنے بڑے جوتے پہننے کی وجہ سے ہی بونا پاؤں زمین پر گھسیٹ گھسیٹ کر چل رہا تھا۔ موچی نے کہا، اتنے بڑے جوتے پہن کر چلنا پھرنا بہت تکلیف دہ کام ہے، یہ جوتے تو بہت بڑے ہیں، تمہیں کہاں سے ملے؟ بونے نے جواب دیا، میں بونوں کی دنیا میں رہتا ہوں، ہماری دنیا سامنے والے پہاڑ کے پیچھے ہے، میرا کسی کام سے تمہاری دنیا میں آنا ہوا، یہاں پہنچنے کے لیے پہلے تو مجھے پہاڑ پر چڑھنا پڑا اور پھر اترنا بھی پڑا، اس وجہ سے میں بہت تھک گیا تھا۔ میرے سامنے ایک جنگل تھا، جنگل میں پہنچ کر آرام کرنے کے لیے ایک درخت کی ٹھنڈی چھاؤں میں گھاس پر لیٹ گیا۔ اپنے جوتے اتار کر میں نے اپنے قریب ہی رکھ لیے۔ میری تھوڑی دیر کے لیے آنکھ لگ گئی تھی، جب میں سو کر اٹھا تو میرے جوتے غائب تھے۔ میں نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا، میری نظر سامنے درخت پر بیٹھے ایک بڑے سے بندر پر پڑی۔ وہ دانت نکال کر مجھے دیکھ رہا تھا اور اس نے میرے جوتے بھی پہنے ہوئے تھے۔ میں اس کی طرف لپکا تو وہ درختوں کی شاخوں میں جھولتا ہوا میری نظروں سے غائب ہو گیا۔ میں بہت پریشان تھا، جنگل میں جا بجا کانٹے اور چھوٹی کنکریاں پڑی ہوئی تھیں، میں بغیر جوتوں کے ان پر چل بھی نہیں سکتا تھا، لیکن مجبوری تھی، میں نے اپنا سفر پھر شروع کیا۔ ابھی تھوڑی ہی دور گیا تھا کہ ایک جگہ جھاڑیوں میں مجھے یہ جوتے پڑے نظر آئے۔ شاید کسی قافلے نے وہاں پڑاؤ ڈالا تھا، کیونکہ وہاں پر بہت سے مٹی کے ٹوٹے ہوئے برتن اور بہت سی اشیاء بھی پڑی ہوئی تھیں۔ یہ جوتے پھٹے پرانے تھے،
मगर मैंने इन्हें गनीमत जाना और इन्हें पहनकर अपने सफ़र पर रवाना हो गया। मोची ने कहा, ये जूते तो बहुत ही तकलीफ़देह हैं, मगर फ़िक्र की बात नहीं। तुम मेरे साथ चलो, मैं जूते बनाता हूँ। आज मैं अपना काम नहीं करूँगा। तुम्हारे लिए सुबक और ख़ूबसूरत से जूते बनाऊँगा। उन्हें पहनकर तुम बहुत आराम महसूस करोगे। इसकी बात सुनकर बोना कुछ फ़िक्रमंद हो गया और बोला, मैं तो बोनों की दुनिया में रहता हूँ, मेरे पास तो वहीं के पैसे हैं, मगर ये पैसे तुम्हारी दुनिया में नहीं चलेंगे। ये कहकर बोने ने अपनी जेब में हाथ डालकर बोनों की दुनिया के पैसे निकालकर मोची को दिखाए। मोची ने देखा इसकी हथेली पर पीतल के बने छोटे बड़े चौकोर टुकड़े रखे थे। इन पर ना कोई तस्वीर थी और ना ही कुछ लिखा हुआ था। मोची एक अच्छा आदमी था। इसने बोने से कहा, हाँ, इस तरह के पैसे हमारे यहाँ नहीं चलते, लेकिन मैं फिर भी तुम्हारे लिए जूते बनाऊँगा। तुम पैसों की तरफ से फ़िक्रमंद ना हो, ये जूते मेरी तरफ से तुम्हारे लिए तोहफ़ा हैं। बोना ये सुनकर खुश हो गया। मोची इसे साथ लेकर घर आया और जंगल से लाई हुई झाड़ियों का गट्ठा चूल्हे के पास रख दिया। मोची के साथ एक बोने मेहमान को देखकर बीवी ने जल्दी से चूल्हा जलाया और नाश्ता तैयार करने लगी। नाश्ते के बाद मोची बोने को लेकर अपनी दुकान पर आया और इसके जूते बनाने में मसरूफ़ हो गया। दोपहर तक जूते तैयार हो गए। वो नहायत नरम और मुलायम खाल से बने थे और बोने की पिंडलियों तक लंबे लंबे थे। बोने ने इन्हें पहनकर देखा और खुश हो गया और बोला, आबिद मोची, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुमने बहुत खूबसूरत और आरामदेह जूते बनाए हैं। तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो। मैं तुम्हें हमेशा याद रखूँगा। अब मैं चलता हूँ ताकि रात होने से पहले अपने घर पहुँच जाऊँ। मोची ने इसे खुदा हाफिज़ कहा और दोबारा अपने काम में मसरूफ़ हो गया। इस बात को बहुत दिन हो गए। मोची इस बोने को भूल भाल गया था। अचानक एक रोज़ रात को इसके घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। मोची ने दरवाज़ा खोला और ये देखकर बहुत खुश हुआ कि वही बोना इसके दरवाजे पर खड़ा है। सामने एक छोटी सी बग्गी खड़ी थी। बोना इसी बग्गी पर सवार होकर आया था। वो बोने को घर के अंदर ले आया। मोची की बीवी भी बोने को देखकर बहुत खुश हुई। उसने गुड़ के मीठे चावल बनाए हुए थे। बोने को मीठे चावल बहुत पसंद थे। उसने चावल बड़े शौक़ से खाए और खाने के बाद मोची की बीवी का शुक्रिया अदा किया और आबिद मोची से कहा, तुम्हारे बनाए हुए जूतों की मेरे मुल्क में हर तरफ धूम मच गई है। वहाँ के तो लोग सूखे पौधों से बने जूते पहनते हैं। ऐसे शानदार चमड़े से बने खूबसूरत जूते उन्होंने कभी नहीं देखे थे। इन जूतों की खबर शाही महल में भी पहुँच गई है। हमारे बादशाह ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है और कहा है कि तुम इनकी मलका के और इनके बच्चों के जूते बनाओ। इसलिए मैं तुम्हें लेने आया हूँ। बस अब चलने की तैयारी शुरू कर दो। हमारे बादशाह इस काम का तुम्हें बहुत सारा इनाम देंगे। बोने की बातें सुनकर मोची को बहुत खुशी हुई। इसने कहा, हाँ हाँ, मैं ज़रूर तुम्हारे साथ जाऊँगा और इस बहाने मैं बोनों की दुनिया भी देख लूँगा। सुना है बोनों की दुनिया बहुत खूबसूरत है और वहाँ सब लोग बड़े प्यार से रहते हैं। तुमने ठीक सुना है, हमारी दुनिया के लोग बहुत अच्छे हैं, बिल्कुल तुम्हारी और तुम्हारी बीवी की तरह। तुमने भी तो मेरे साथ बहुत अच्छा सलूक किया था। मेरे पास तुम्हें देने के लिए एक पैसा भी नहीं था। इसके बावजूद तुमने मुझको बहुत खूबसूरत और नरम प्यारे से जूते बनाकर तोहफे में दिए। बोने की बातें सुनकर मोची बोला, हमने जो किया वो हमारा फ़र्ज़ था। वैसे भी किसी के काम आना अच्छी बात है।
बोने ने अपनी जेब से चंद सोने की छोटी छोटी डलियां निकाल कर मोची को दी और बोला, ये सोने की डलियां हमारे बादशाह ने तुम्हारे लिए भिजवाई हैं ताकि इसे बेचकर तुम जूते बनाने के लिए चमड़ा और दूसरी चीज़ें खरीद सको। इसके अलावा तुम्हें एक घोड़ा भी खरीदना पड़ेगा। इस पर बैठकर ही तुम हमारे मुल्क जा सकोगे। वो पहाड़ों के पीछे है और यहाँ से काफ़ी फासले पर है। तुम तैयारी शुरू कर दो, मैं 1 हफ्ते के बाद आऊँगा और तुम्हें अपने साथ ले जाऊँगा। ये कहकर बोना अपनी सुनहरी बग्गी की तरफ बैठने गया। बग्गी में एक छोटा सा घोड़ा जुता हुआ था। बोना बग्गी में सवार हो गया तो घोड़ा हल्की सी आवाज़ में हिनहिनाया। सर घुमाकर मोची को देखा और फिर रवाना हो गया। मोची ने जब सोने की डलियां अपनी बीवी को दिखाईं तो वो बहुत खुश हुई। मोची ने अपने सफ़र की तैयारियां शुरू कर दी। इसने नरम नाजुक चमड़ा, नए औजार, रेशमी धागे और जूते बनाने में काम आने वाली दूसरी चीज़ें खरीदी। इसने सवारी के लिए एक घोड़ा भी खरीद लिया। इसे इस बात की बहुत खुशी थी कि इसके काम को बोनों की दुनिया में भी बहुत पसंद किया गया था। बस अब उसे बोने की आमद का इंतज़ार था। खुदा खुदा करके 1 हफ्ता गुजर गया और एक सुबह बोना अपनी बग्गी में सवार उसके घर आ पहुंचा। मोची तो तैयार ही बैठा था। इसने अपनी बीवी को अल्लाह हाफिज़ कहा और बोने के साथ चल पड़ा। बोने की बग्गी आगे आगे थी और मोची अपने घोड़े पर सवार उसके पीछे चला जा रहा था। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को अबूर करके वो एक मैदान में पहुँचे। मैदान ख़त्म हुआ तो सामने किसी शहर के आसार नज़र आए। इसी शहर में बोना रहता था। मोची जब शहर में दाखिल हुआ तो उसने बहुत से छोटे छोटे खूबसूरत घर देखे और छोटे छोटे बोने रंग बिरंगे लिबास पहने अपने कामों में मसरूफ़ थे। उनके जानवर भी इनकी तरह छोटे छोटे थे। मोची को गलियों में मुर्गियाँ भी नज़र आईं। इन मुर्गियों का कद चूज़ों जितना था और वो गलियों में भागती फिर रही थी। मोची ने मुर्गियों को देखकर सोचा कि इनके चूज़े कितने छोटे होते होंगे। वहाँ इससे फलों के दरख्त भी नज़र आए। वो थे तो दरख्त मगर झाड़ियों जितने थे और फलों से लदे हुए थे। वहाँ के सेब बेर के साइज़ के थे और केले मोची की उंगली के बराबर। यही हाल उन पर बैठे परिंदों का भी था। चिड़ियाँ भंवरों जितनी छोटी थीं और कौवे चिड़ियों के साइज़ के थे। मोची को ये सब देखकर बड़ा मज़ा आ रहा था। बोना मोची को लेकर एक बहुत ही बड़ी और ख़ूबसूरत इमारत के पास लाया। ये बादशाह का महल था। ये महल इतना बड़ा था कि मोची थोड़ा सा झुककर इसमें दाखिल हो गया। महल के अंदर बादशाह और मलका अपने बहुत से शहजादे और शहजादियों के साथ बैठे थे। मोची ने अदब से बादशाह और मलका को सलाम किया। बोने ने मोची का तारुफ बादशाह से कराया। बादशाह ने कहा, हमें खुशी है कि तुम अपने काम में बहुत माहिर हो। हम चाहते हैं कि तुम हमारी मलका और हमारे शहजादे और शहजादियों के लिए जूते बनाओ। मोची ने कहा, जहाँ पनाह मैं आप सबके ज़रूर जूते तैयार करूँगा और मुझे उम्मीद है कि मेरे बनाए हुए जूते आपको बहुत पसंद आएंगे। महल के एक बड़े कमरे में मोची को ठहराया गया। मोची ने थैलों में से अपना सामान निकाला। बादशाह, मलका और इनके बच्चों के पैरों की पैमाइश की और फिर अपने काम में मसरूफ़ हो गया।
اس کے رہنے سہنے اور کھانے پینے کا بہت اچھا انتظام تھا۔ وہ مسلسل 8 دن تک کام میں مصروف رہا۔ 8 روز گزرے تو تمام جوتے تیار ہو چکے تھے۔ اس کے بنائے ہوئے جوتے اتنے خوبصورت تھے کہ بادشاہ اور ملکہ انہیں دیکھ کر دنگ رہ گئے۔ ان کے شہزادے اور شہزادیوں نے جب ان جوتوں کو پہن کر دیکھا تو وہ بہت خوش ہوئے۔ موچی کا کام ختم ہو چکا تھا۔ اب اس نے اپنے گھر جانے کی اجازت طلب کی۔ بادشاہ نے موچی کو بہت ساری سونے کی ڈلیاں دیں۔ اتنی سونے کی ڈلیاں لے کر موچی بہت خوش تھا۔ اس کا دوست بونا اسے دور تک چھوڑنے آیا۔ موچی جب گھر پہنچا تو اس کی بیوی بھی سونے کی ڈلیاں دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ موچی نے ان ڈلیوں کو بیچ کر سب سے پہلا کام یہ کیا کہ اس نے اپنی دکان کی مرمت کرائی تاکہ وہ بارشوں کے موسم میں اپنا کام اطمینان سے کر سکے۔ جب یہ کام مکمل ہو گیا تو اس نے اپنا ایک اچھا سا گھر بھی بنا لیا اور وہ اپنی بیوی کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگا۔